Where are our rights? We have the right to sit in the sofa and right to see the news. In airport, there is only one queue for women, 4 queue for men. Every space we have the right to ask questions. महिलाओं के साथ में अगर कुछ हुआ तो 50% उनकी आबादी है। ऐसी कौन सा संगठन है जो उनके लिए रास्ते पे आएगा कि मेरी लड़की 7 के बाद बाहर नहीं निकलेगी? वो अभी वो नेता है, वो लीडर है, उसके बावजूद भी वही सोच रही, कोई प्रॉब्लम नहीं अगर मुझे लड़की है और लड़का नहीं है। बॉलीवुड वाले भी बोलते हैं कि हमारी जो मेल सुपरस्टार्स होते हैं उनसे फीमेल सुपरस्टार की सैलरीज कम होती है। ये भागीदारी लेने के लिए हमें पावर में आना पड़ेगा। सैनिटरी नैपकिन पे आज भी लग्जरी गुड्स का टैक्स लगता है। जब भी हमारे हाथ में रिसोर्सेज हो, हम तो रिसोर्सेज को इस तरह से खर्च करें कि वो महिलाओं के लिए भी इक्वल रहे। Talking about Shakti Abhiyan, we have to understand the woman rights. Where are our rights? Inside the house or outside the house? Inside, what we are doing? Inside, in the hall itself, we are not going. We are not talking politics like men. House, we are in the kitchen. Even if we go as a guest, we go to the kitchen. That is also a politics. That is also rights. We have the right to sit in the sofa and right to see the news and right to talk about politics with men. For that also, inside also we have to fight. There is no other way. Outside, road space. What happened to domestic workers? Most of the women domestic workers are inside and Uber drivers outside. So where are our road space? Our night road space. So where is our equality? In airport, you can see that woman queue. There is only one queue for women, 4 queue for men. And each and every place we have the politics. Every space we have the right to ask questions. And we have the mostly our marriage system based on Varnashrama and Manudharma. We are going to male house. Where is our house? We don't know the property rights. Because the marriage system we are moving to Vidai. Vidai the function people will cry. But it's not for crying for not leaving the woman. They are taking our rights. Because we can't have property rights in our father house, we can't have property rights in husband house also. After that, yes, he will ask what will happen to the property. We don't have money. If divorce happens, we won't have any money at all, and we don't have rights in politically also we don't have rights. So each and every from birth to in Shakti Abhiyan we do one drama. I tell them to act like from birth, male and female, how they grow up, and after 20 years. The female will grow up in a different way, male will go to the job, and they talk about the male. He will beat, and she will get into domestic abuse. He will drink, she doesn't drink. He won't come from after 5 o'clock. We should not go. So everywhere our politics is there. One person, one woman can't go to the road. So through Shakti Abhiyan, you have to occupy the right space from road, home, and everything, and we have to bring up the kids also with the equality. So from LKG to death, we have a lot of issues to talk, and for that every leader should look at the society very carefully, and they have to take daily, day to day we have to take that, and we become a trainer or we become a leader through day to day. Today you can see what happened today morning. Who are sitting in the stage? Who are in the school, who are giving voice? Why the girl is not going to abroad? Why male are going to abroad? You can take in the top also. Why Neeta Ambani? What is the role of Neeta Ambani? Go to up and what happened? Why these Ambani boys only getting equality? It's not only rich or poor, or upper caste or lower caste, or a domestic worker or CEO, or working woman or not homemaker. Every space we have the ability to fight. Every space we have the place to fight. So we can pick up anything, because I talk about Ana Asti Adhikara. Ana means money, Asti means our property right, and Adhikara. 3 we don't have that equality. So wherever I go to Shakti Abhiyan, I talk these 3 words. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हर समाज का रिप्रेजेंटेशन है। जैसे कोई समाज के साथ में अगर कुछ महिलाओं के साथ में कुछ होता है, जैसे पटेल के साथ में कुछ हुआ, तो पटेल का एक नेता है, वो सामने आएगा रास्ते पे, पटेल समाज उसके लिए रास्ते पे आएगा। अगर उस नेता के साथ में कुछ होता है तो समाज
रास्ते पे आएगा उस नेता को बचाने के लिए। वही मराठा में है, वही जाट में है, वही दलित में है, सब है। महिलाओं के साथ में अगर कुछ हुआ तो 50% उनकी आबादी है। ऐसी कौन सा संगठन है जो उनके लिए रास्ते पे आएगा? और वो क्यों नहीं आता, मैं आपको बताता हूं। मैं आपको एक सिर्फ सवाल पूछता हूं कि हमारे पिताजी सोचते थे मेरे घर का जो वारिस है वो लड़का रहेगा। मेरी माँ भी वही सोचती थी और सबके घर की परिस्थिति वही है। तो वो इसलिए सोचती है, उसमें उसका दोष नहीं है, वो इसलिए सोचती है कि वो इस सिस्टम का एक पार्ट है। और हमारे ब्रेन वैसे बनाए गए हैं कि हमें पता है कि लड़का ही वारिस रहेगा, तो महिला भी वही सोचती है। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है, महिला वहां पे आ रही है लेकिन उसकी सोच जो है ना वो वही है कि मेरी लड़की 7 के बाद बाहर नहीं निकलेगी। वो अभी वो नेता है, वो लीडर है, उसके बावजूद भी वही सोच रही। उसको रिप्रेजेंटेशन भी मिला है रिजर्वेशन के बेस पे। हम चाहते वो सोच से ना बने जो पितृसत्ताक है। हम चाहते उस महिलाओं को तैयार करना जो दोनों को इक्वल समझे। वो ये ना समझे कि लड़की भी रहेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं 7 के बाद बाहर निकलना। वो ये भी सोचे कोई प्रॉब्लम नहीं अगर मुझे लड़की है और लड़का नहीं है। तो पुरुष तो नहीं सोच सकता, उसका रीजन मैं आपको बताता हूं कि अगर उसको सोचना पड़ता तो हजारों सालों में सोचता, या फिर 70 साल में कभी ना कभी सोचता। लेकिन वो सोच नहीं सकता क्योंकि वो पेन नहीं वो बेयर करता, उसको पेन मतलब उसको महसूस ही नहीं होता। तो इसीलिए इस तरीके की सोच के लोग हम बना रहे हैं जो समाज में, चाहे मैं मेल हूं लेकिन मैं ये सोचता हूं, मैं महसूस करता हूं कि मेरी एक ही लड़की है और मुझे पता है वही मेरी वारिस है, बराबर है। तो ये मायने नहीं रखता कि वो लड़की है इसलिए उसने ही सोचना चाहिए। वो एक मर्द भी सोच सकता है कि दोनों इक्वल है। जन्म से कोई अलग अलग नहीं हो सकता, ना जात में और नहीं जेंडर में। तो अगर वो सोच हमको समझ में आ गई कि सब इक्वल है तो फिर ये आपको समझ में आ जाएगा कि शक्ति अभियान किसके लिए। तो ये शक्ति अभियान का खड़ा करना वही है कि जितने भी यहां से महिला निकलेंगी वो जब राजनीति करेंगी, बराबर है, तो इनका खुद का एक फोर्स होगा। मैं आपको बताता हूं, ये महिला अगर इनके साथ में कल कुछ अगर नेता भी बने, अगर कुछ हो गया तो कोई समाज इनके लिए नहीं आएगा। अगर ये मुस्लिम है तो मुस्लिम समाज आएगा, मराठा है तो मराठा आएगा, दलित है तो दलित आएगा, लेकिन महिला नहीं आएगी। लेकिन महिला तभी रास्ते पे उतरेंगी जब हमारा संगठन होगा, इस सोच का संगठन होगा। अगर महिला हमारे साथ में है, अगर उस महिला के साथ में कुछ अगर कोई बोलेगा उसके, तो पूरा संगठन बाहर आ जाएगा। और कोई भी महिला के साथ में अगर कुछ होता है तो ये सब नेता बाहर आ जाएंगे, समझ लो। तो ये इसकी लड़ाई है। तो इस तरीके का हम तैयार करें। अभी हमारे सिंबॉलिक, जैसे पिताजी ने कहा है, 13.5 लाख महिला है, लोकल बॉडी इलेक्शन में भी चुन के आई है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, बराबर। लेकिन 1% महिला है जो अपने खुद के डिसीजंस लेती है, न तो 99% जो महिला है उनके पति, उनका भाई या उनके पिताजी जो भी है वो डिसीजन लेते हैं, उसको लीड करते हैं। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, हमें सिंबॉलिक नहीं चाहिए। उसको एज ए नागरिक, एज ए सिटीजन अगर आप ट्रीट करेंगे, उसका खुद का जब ओपिनियन हो जाएगा तो वो भी आपकी वोट बैंक हो जाएगी। फिर उसके साथ में कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके साथ में कुछ हुआ तो एक तुम बहुत बड़ा तबका जो है वो तुम गवा बैठोगे, तो तुम्हारे साथ फिर ये पुरुष लोग भी रास्ते पे आएंगे। तो यही हो रहा है। बॉलीवुड वाले भी बोलते हैं कि हमारी जो मेल सुपरस्टार्स होते हैं उनसे फीमेल सुपरस्टार की सैलरीज कम होती है। तो ये भागीदारी हम लेंगे कैसे? ये भागीदारी लेने के लिए हमें पावर में आना पड़ेगा, है ना। जब तक हम पावर में नहीं आएंगे, हमारे हाथ में पावर नहीं होगी, तो हम इस भागीदारी के लिए लड़ेंगे कैसे? अभी जैसे रिचा ने बोला कि किसी के पापा बड़े होते हैं तो उनकी बेटी आ जाती है, किसी की ये आ जाती है, कोई प्रिविलेज फैमिली से आ जाता है, उनको मिल जाता है, कोई पैसे देके टिकट ले लेता है ना। तो ये महिलावादी राजनीति करने वाली महिलाएं नहीं होती है। तो हम चाहते हैं कि ये जो शक्ति अभियान है ये हमें ट्रेन करे वो पावर लेने के लिए, है ना। इससे हम जाएंगे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, हम लड़ेंगे। हम जब यहाँ पे जितनी भी महिलाएं हम बैठी है, हम लोग जानते हैं कि हमें महिलावादी राजनीति करनी है। कल अगर जाके मैं कॉर्पोरेशन का इलेक्शन लड़ती हूँ या लिली जी ने जो इलेक्शन लड़के जीती है, तो उसका कोर मोटो क्या है कि मुझे महिलावादी राजनीति करनी। तो वो अपने गांव में जो राजनीति कर रही होंगी, उसके दिमाग में जो समाज के लिए जो वो सेवा कर रही होंगी, उस समाज में महिला सबसे पहले होंगी, है ना। कि भाई ये 50% को क्या मिल रहा है। तो
हम यही चाहते हैं कि हमारी 50% इन 3 क्षेत्रों में भागीदारी के लिए हमें पावर में आना है। तो पावर में आने के लिए हम यहाँ ट्रेन हो रहे हैं। जो आपने बोला नर्सरी था, एग्जैक्टली हम उस नर्सरी में है जहाँ पे हम नर्चर हो रहे हैं। लगातार लड़ाई करनी होगी, और जब लड़ाइयों की एक सीरीज बनेगी, जब वही लड़ाई हरियाणा में होगी, वही लड़ाई छत्तीसगढ़ में होगी, वही लड़ाई तमिलनाडु में होगी, तो वो एक आंदोलन का रूप लेगा। तो इसीलिए शक्ति अभियान को हम एक आंदोलन कहते हैं। और हमारी कोशिश ये भी है कि एक छोटा एग्जाम्पल अगर दे पाए तो 2019 में जब हम लोकसभा चुनाव हम सबने अपने अपने वोट डाले तो 78 महिलाएं चुनकर आई थी। और सैनिटरी नैपकिन पे आज भी लग्जरी गुड का टैक्स लगता है। 78 महिलाओं के 542 में से 78 महिलाओं के होते हुए भी अगर सैनिटरी पैड पे टैक्स लगता है तो इस समय ये समझ में आता है कि वहां जो 78 महिलाएं बैठी हैं वो महिला है, वो महिलाओं की नेता नहीं है। तो वो डिफरेंस समझना भी बहुत जरूरी है कि हो सकता है मैं यहाँ से जाऊं और मैं चुनाव लड़ूं और मैं जीत जाऊं, लेकिन कल के दिन अगर मैं अपने क्षेत्र की महिलाओं की आवाज नहीं उठा पा रही हूँ तो फिर शक्ति अभियान की पूरी मीनिंग को कहीं ना कहीं मैं ही खत्म कर दूंगी। तो ये ध्यान में रखते हुए कि अगर इसको हम प्री स्कूल, नर्सरी, हम जो भी बोले, लेकिन इस आइडिया को लेकर ही हमें चलना है। कल के दिन यहाँ से निकली हुई हर एक महिला जब अपने अपने स्थान पर होगी, जब अपना एक मकाम हम हासिल कर लेंगे, थोड़ी पावर हमारे पास में होगी, जब उस पावर को प्रैक्टिस करने की आदत आएगी, तब भी हमारे कंडक्ट में वो महिलावादी सोच झलकनी चाहिए। जब भी हमारे हाथ में रिसोर्सेज हो, हम तो रिसोर्सेज को इस तरह से खर्च करें कि वो महिलाओं के लिए भी इक्वल रहे। क्योंकि हम मतलब अगर डिफरेंसेस की बात करने जाए तो मुझे नहीं लगता कि शाम हो जाएगी और हम डिफरेंसेस पे बात करते रहेंगे कि कैसे कैसे महिलाओं का जीवन ज्यादा संघर्षशील रहा है हर एक स्तर पे, बचपन से लेके बड़े होने तक, बुढ़ापे तक। तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखने के लिए जो बड़ा बदलाव हम कर सकते हैं वो बिल्कुल अलग अलग महिला संगठन है जो छोटे स्तर पे कर सकते हैं। एनजीओ से और इस तरह के तमाम जो डेवलपमेंटल सेक्टर के जो माध्यम है उनसे आप एक बार में 10, 15, 20, 50, 500, 1000, 5000 परिवारों को बदल सकते हैं, 5000 महिलाओं की जिंदगियां बदल सकते हैं। लेकिन राजनीतिक रूप से अगर हम कोई बदलाव लेकर आते हैं तो वो सदियों तक चलता है। पेट्रियार्की राजनीतिक एक कॉन्सेप्ट है, उसको खत्म करने के लिए भी हमें राजनीति ही करनी होगी, वो हम एनजीओ से नहीं कर पाएंगे। बड़ा बदलाव आप जब करते हैं तो वो धीरे धीरे एक्सेप्टेंस आ जाती है। यही देश था जहाँ पे एक टाइम पे दलितों के पास में किसी भी तरह की पावर नहीं थी, लेकिन आज हमारे पास में चंद्रशेखर आजाद है, हमारे पास में मायावती जैसे उदाहरण है, लेकिन महिलाओं के ऐसे उदाहरण नहीं निकल कर आए।